वेलकम टू हर घर पाठशाला। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक, हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे कि हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। और वी हैव दिस इज माय चैनल एसके क्लासेस फॉर फिजिक्स एंड दिस इज माय नंबर। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन कंसल्ट मी ऑन माय फोन। ओके, एसके क्लासेस फॉर दिस माय यूट्यूब चैनल। यू कैन लाइक माय लेक्चर, you can subscribe my lecture. Now, what we'll do, the experimental study of photoelectric effect. See, I have a diagram here. I will explain this diagram. Okay, this is a tube. This is a tube of glass tube. Inside it, we have added there is a gas at very low pressure. At very low pressure, there is a vacuum is here. The gas is at very low pressure. Now, this is a tube, and we have a plate. This is a metal plate, and this is also a metal plate. We can say it is a cathode, and this is called anode. Okay, anode means this is the positively charged and this is a negatively charged. Cathode means negatively charged. And we have here the emitter. This is a micrometer we have used for measuring the photoelectric current. That is a small current. Okay, and we have here is a voltmeter that will measure the voltage. And here is we have the rheostat, and there is a high tension battery. This battery, what will do? This battery will apply this, do the positive terminal to this, and rheostat that will change the voltage. We can increase or decrease the voltage. We have a key here. We can on or off our circuit. So this is a reverse switch. How this is a reverse switch? See, if we connect this here to here and this here to here, we can change the. See, we can connect here to here, here to here, yeah, either here to here and here to here. This is a reverse switch. We can do it positive. We can do it negative. That's why we use. See, suppose we have to do it so we have to do it positive. What will we do? So this is our positive terminal. This is suppose this is the positive terminal towards the side. But I will connect it with this. And connected with this become positive. Okay, but if I connect it with here and connect it with here, this become equal to positive. This become equal to positive. So we can do it positive and negative. So this is, see, this is UV light that falls. That's quartz window, transparent window है quartz. यहाँ से लाइट आएगी इस मेटल सरफेस को। मैंने पहले बता चुका हूँ कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है वो क्या करती है कि किसमें से पास हो जाती है, क्वार्ट्स में से। हम यहाँ पे ग्लास विंडो भी यूज करते हैं, यू यूज द ग्लास विंडो, लेकिन उस केस में जो लाइट होगी दैट इज विजिबल लाइट हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेटल होंगे, अल्कली मेटल्स होंगे, not the other metals. Okay, so this is the case. This is our experimental diagram that we will see. Now we have to study here. See, we will follow the light here, and the electrons will come out. So that will measure the current. How much is the current? That is the photoelectric current. We will see this. What will happen here? So number first, we have to see effect of intensity. Number first is effect of intensity of light on photoelectric current. Means intensity of light का photoelectric current के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? That we have to see. What is the effect of light on the photoelectric current? Intensity का photoelectric current के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? What we'll do? हम यहाँ पे इंटेंसिटी की लाइट, इस इंटेंसिटी की लाइट ले लेते हैं। सपोज हमने ले ली यहाँ से, जैसे हमारे पास सपोज करिए हमारे पास 100 वाट का बल्ब है। यहाँ से हमने 100 वाट का बल्ब जलाया और यहाँ से उसके ऊपर लाइट स्टोर कर दी। जब 100 वाट का बल्ब यहाँ से जलाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी हमें पता है, इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इन केस ऑफ 100 वाट, सपोज वी हैव 100 वाट बल्ब, we have 200 watt bulb, we have 50 watt bulb. Suppose in which case the intensity is more. You see, in this case 200 watt bulb, its intensity is more, and its intensity is less, and this intensity is very less. First of all, you understand. So you want to glow your room more. What you have to do? You have to use more wattage bulb. Means intensity बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा, और मैंने बता चुका हूँ intensity is directly proportional to amplitude square. Mean intensity amplitude के proportional होती है. And more is the amplitude, more is the intensity. That I have explained in the previous topic. More is the amplitude, but is amplitude the maximum value from the mean position? That is called intensity is that proportional to amplitude. That you know. Okay. Now suppose we have take the light and we will fall here. We will fall the light here. Now what will happen? We will find that as we fall the light, the electron will comes outside from the metal surface, and the electron will comes outside the metal surface. So this is what will we do? I will do it positive, but I will do it positive, and it is negative. So this is negative. Obviously, it means when the electrons come outside from it, but this become positive. Means positive. This is the positive then. But what will happen? This become equal to positive. When the electron यहाँ से निकलेंगे तो ये प्लस चार्ज बच जाएगा। प्लस चार्ज मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ को भागेंगे? प्लस की चार्ज को, प्लस को नेगेटिव, प्लस उनको क्या करेगा? मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ को जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ को मूव करेंगे। When they will start moving toward positive charge, when the electrons will move, you know there is a production of current. Then there is the current that will come, that is called the photoelectric current. We measure the current here.
Okay, we can measure the current from here. Now what we will do, the second case, but we will increase the intensity to 200 watt, but we will find the current will become more. Current will become more. We will increase the intensity, we will decrease the intensity to 500 watt बल्ब की इंटेंसिटी लेते हैं तो हम देखते हैं कि करंट कम हो जाता है. जब हम इसको बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ जाता है. मीन जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता जाता है. इसका मतलब इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है? करंट. कौन सा करंट? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोइलेक्ट्रिक करंट. Means photoelectric current is directly proportional to intensity. When we make the graph between which one your intensity and photoelectric current IP लिख रहा हूँ photoelectric microamperes में, तो we'll find a straight line. We will find a straight line is the graph between which one? Means photoelectric current is directly proportional to the intensity of the incident light. If you increase the intensity of the incident light, more is the photoelectric current. This is the graph between. What you will find? Effect of intensity of light on the photoelectric current. What you mean find? If photoelectric current is directly proportional to intensity, you can increase the intensity, more is the current. More is the intensity, more is the current. More is the intensity, more is the current. Now, why is it so? Suppose we have a 50 watt bulb. Suppose if we have a metal surface, then it has a large number of free electrons, as we know. This the metal surface will not going to be changed. If it is a copper, then it will be copper. In case of copper, there is a large number of free electrons that we know. Or I will give you, when we strike the light from here, intensity of light means, if suppose 100 watt bulb मैंने यहाँ पे use किया, suppose it will give us 100 electrons. Not the 100, it may be more, but I am taking an example. when 100 watt का हमने बल्ब यूज किया तो उसने 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मिट के 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचे आकर के. मोर इज द करंट. सपोज मैंने 50 वाट का यूज किया तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? प्रोपोर्शन रखो तो 50 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, निकलेंगे बाहर इस मेटल सरफेस. लेकिन जब मैं 200 वाट करूंगा तो कितने निकलेंगे? 200 निकलेंगे. 1000 करूंगा तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे किससे बाहर? इस मेटल सरफेस. तो करंट बढ़ता जाएगा. मींस मोर इज इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर. जितनी ज्यादा आप इंटेंसिटी यूज करेंगे उतने ज्यादा क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. सिंपल सी बात है. हमने यहाँ कोई कलर चेंज नहीं किया. कलर मीन द सेम. सपोज यू आर यूजिंग द ब्लू लाइट, देन these three bulbs are of blue light. You can't change the light. You can't change the color of light. Okay? If you change the color of light, then the frequency will change. Okay? Color decides the frequency. Because you know bigor, violet color have more frequency than red color. Red color का frequency कम है, violet color का frequency ज़्यादा है. तो ये तो बात आपको क्लियर होगी. नंबर फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट मीन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. द फर्स्ट केस दैट वी गॉट द क्लियर्स. नाउ सेकंड केस, व्हाई द करंट इज मोर? बिकॉज़ द मोर नंबर ऑफ, as you know, suppose I is equal to NeAVD. So this is a Diplasty. You study this relation in the second unit. N is the number of electrons per unit volume. That is, we can say in case of here that is more. If that is more, then the current is more. As you know, E for charge and A for area of this metal piece, and VD for the Diplasty. That relation we have done. More is the number of electrons, more is the current. Mean if you have the 100 watt bulb, 100 electrons will come outside. If you have 50 watt bulb, then the 50 electrons will come outside. If 200 watt bulb, then we have 200 electrons will come out. More is the electrons, more is the current. We can say if photoelectric current is directly proportional to the intensity, means more is the intensity, more is the photoelectric current. This relation, this is a directly proportional relation है. Photoelectric current is directly proportional to intensity. This is the first case that we have to study. Now we have to go for second case. Effect of voltage, effect of voltage या potential बोल सकते हैं आप लोग. Effect of potential on photoelectric current. Effect of potential on photoelectric current. Potential का क्या इफेक्ट होगा फोटोइलेक्ट्रिक क्या करंट के ऊपर? That we have to see. Now we have to see. Suppose what we are using now. Suppose we have used the intensity. Suppose I1 intensity का लाइट यूज करते हैं. I1 intensity means कोई लाइट यूज करते हैं. I1 इंटेंसिटी का 100 वाट का हमने मान लीजिए यूज किया. इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख दिया हम लोगों ने. अब इंटेंसिटी कांस्टेंट है, हमने यहाँ से लाइट थ्रो की. जब हमने यहाँ से लाइट थ्रो किया इसके ऊपर, तो क्या किया हमने? इसको पॉजिटिव कर दिया. कहाँ से? यहाँ से इसको देखा पॉजिटिव. जब हमने इसको पॉजिटिव किया यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत और ज्यादा, मीन्स आपका जो करंट है वो तो बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा यहाँ से. ठीक है, जितनी हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही आपका करंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. More is the voltage, more is the current. See, if you see the graph between this, which one your potential and photoelectric current के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये हमारा मान लीजिए फोटोइलेक्ट्रिक करंट है और ये हमारी वोल्टेज है. इधर को आपकी वोल्टेज कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, और इस तरफ को कैसी होगी? नेगेटिव होगी. हमने क्या दिया? जब हमने ग्राफ देखा तो हमने क्या देखा कि
जब हमारा करंट जीरो था, जब हमारे पोटेंशियल जीरो था, तब भी तो कुछ वैल्यू थी करंट की, हाँ तो नहीं थी। जब हमने इसको पोटेंशियल को पॉजिटिव नहीं किया था तो कुछ वैल्यू करंट की थी। मान लीजिए यहाँ पर वो वैल्यू है, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि अभी तक हमने इसको की को ऑन नहीं किया था, की को ऑन नहीं किया था, तब भी हमारे पास करंट आ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू थी, तो हमने देखा कि करंट थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज हुआ, ऐसे इंक्रीज हुआ और कांस्टेंट हो गया, सैचुरेशन हो गया। मान लो इंटेंसिटी I1, इंटेंसिटी I1 I1 के लिए क्या हुआ कि आपका करंट बढ़ा बढ़ा और कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया। एक स्टेज ऐसे है कि उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे। हमने इसको पोटेंशियल को 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 वोल्ट किया, लेकिन 5 वोल्ट के ऊपर क्या हो गया, कांस्टेंट 1 और 2 के ऊपर बढ़ा, थोड़ा सा करंट बढ़ा और उसके बाद सैचुरेशन आ गई। ये आपको समझा रहा है। हमने क्या किया, हमने इंटेंसिटी को और बढ़ाया। हमने जब इंटेंसिटी को और बढ़ाया, जब आप इंटेंसिटी को, तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। मान लीजिए हमने और करंट को बढ़ाया, I3 इंटेंसिटी ली, तो हमारे पास इस तरह से आपको ग्राफ आ जाएगा। ऑलरेडी सैचुरेशन तो आएगी। तो इस तरह से आपका करंट थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद सैचुरेशन आ गई, सैचुरेशन करंट आ गया। लेकिन हमने क्या किया, इसको बाय रिवर्सिंग द स्विच वी विल डू इट एज नेगेटिव। जब हम इसको नेगेटिव शुरू किया तो क्या होगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो नेगेटिव रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन रुकना शुरू हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन रुकना शुरू हो जाएंगे तो करंट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। मींस हमने नेगेटिव कर दी पोटेंशियल को। जब हमने नेगेटिव किया तो हमने देखा ऐसे ऐसे आपका करंट कम होना शुरू, और यहाँ पे आकर आपका करंट कितना हो गया, जीरो हो गया। करंट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इस पोटेंशियल को मालूम मैंने लिख दिया बी नॉट ना, रख दिया इसको बी नॉट। अब मैंने क्या किया, सेकंड केस में देखा, जब सेकंड केस में इंटेंसिटी बड़ी हुई थी तब भी मैंने देखा तो ये बी नॉट यहाँ पे सेम ही रहेगा, ऐसे यहाँ एक ही पोटेंशियल के ऊपर मींस इस पोटेंशियल का नाम हमने रख दिया कट ऑफ पोटेंशियल, और वी कैन से इट एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। व्हाई इट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। स्टॉपिंग पोटेंशियल मींस द नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स, free electrons. The negative potential mean what is the stopping potential? The negative value of potential required to completely stop the electrons को completely रोकने के लिए मींस करंट कितना हो जाए, जीरो हो जाए, उस पोटेंशियल का नाम क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इट इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल। लेकिन एक बात यहाँ पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रह रहा है, मीन इसका यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। सी द केस, सपोज करिए मेरे पास यहाँ से रे ऑफ इंटेंसिटी आई, कुछ इंटेंसिटी की लाइट आई, मान लीजिए 100 वाट की इंटेंसिटी की लाइट आई, 100 वाट्स मींस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट से 100 इलेक्ट्रॉन्स कम आउट। लेकिन is that these 100 electron have the same velocity? No. See the case. I will give you the reason. See, I have a metal piece. One electron is here, one electron is here. Now what will I will apply the energy. This electron will come outside with the, suppose it has a suppose it has energy is equal to, suppose मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया, सपोज करिए हमने 5 वोल्ट का, तो मान लीजिए इसके पास जो एनर्जी है वो है, इसके पास एनर्जी है 5 और इसके पास एनर्जी है, इसको बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए 5 और इसको बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए 2। तो आपने तो कितनी अप्लाई की है, 5। ये इसके पास कितनी बच गई, उसके बाद भी 3 बच गई, लेकिन इसके बाद कितनी एनर्जी बचेगी, 0। ये तो रुक जाएगा पहले। मान लो मेरे पास 10 वाला आएगा, मेरे पास सपोज करिए मैंने 5 वोल्ट अप्लाई किया और मेरे पास जो है मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ये एक ही चाहिए इसको बाहर निकलने के लिए एनर्जी, 1 वोल्ट से काम चलेगा, तो उसके बाद 4 बच गई, इसके पास कितनी बच गई, 3 बच गई, इसके बाद 0 बच गई। तो क्या हर इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी सेम है? सेम नहीं है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। If different electron है means different electrons required to stop the जब हमें उनको रोकना है तो हमें डिफरेंट क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे 5 पे तो सभी रुक जाएंगे, 5 पे तो सभी रुकेंगे, 5 पे क्यों रुके, 3 बार रुक जाएगा, 4 बार रुक जाएगा, ऑल विल स्टॉप 5। तो मींस व्हाट कैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। इट मींस यहाँ पे हमारे पास ये कांसेप्ट आ रहा है, इंटेंसिटी जो होगी दैट इज नॉट डिपेंड ऑन या डिपेंड ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, that does not depend upon stopping potential. Which one? Intensity is independent of the stopping potential. Intensity stopping potential नहीं करेगी। Means यहां से हमारे पास stopping potential remain the same. Intensity चाहे कितनी मर्जी बढ़ा दो, stopping potential same रहेगा, because intensity does not depend upon the stopping potential. Stopping potential क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, जब रुक जाएंगे तो करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, स्टॉप कर देगा। तो टोटल आपकी कौन सी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, इसमें चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी।
तो यहां से हमारे पास एक चीज आती है, अगर हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या इनटू वी होता है, that is the energy, that is the work done, that is equal to the potential energy. What about the potential energy? If you see, we can say E into V naught, E into V naught, that is the potential energy. और potential energy is equal to kinetic energy होगी, तभी तो आपका ये रुकेगा. लेकिन यहाँ पे kinetic energy कितनी होगी? That is half into m into B maximum का square, उसको रोकने के लिए. और that is if you say half m into B maximum square, that is equal to E V naught. Means kinetic energy is directly proportional to the stopping potential. Kinetic energy is directly proportional to the stopping potential, but intensity does not depend upon the stopping potential. यहाँ से हमारे पास क्या है कि kinetic energy जो है वो directly proportional किसकी होगी? stopping potential की. Kinetic energy किसके directly proportional होगी? stopping potential के directly proportional होगी. That is directly proportional to the stopping potential. और एक बात और आ रही है कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये केस आ गया. This kinetic energy is directly proportional to stopping. This is the case. Means, but we got here कि in the second case, what is the effect of potential on the kinetic energy? By that we saw this intensity of incident light does not depend upon the stopping potential. The second case कि stopping potential effect नहीं करते, और maximum kinetic energy जो होगी that is directly proportional to which one is stopping potential. This is the second case we have done. Now third case, what is the effect of frequency? Effect of frequency on, you know how the frequency will change if you use the light of different colors. Yes. See the case. Now we have now the which one case? We have the case now effect of frequency on photoelectric current. See the case now. Effect of frequency on photoelectric effect current. Effect of frequency on photoelectric current means nu का क्या फर्क पड़ेगा इसके ऊपर. देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि इंटेंसिटी को कांस्टेंट 100 वाट का वाला भी यूज करते हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउटसाइड? 100 मान लीजिए, तो मेरी असम्पशन है पता नहीं कितने निकलेंगे, लेकिन 100 वाट का बल्ब यूज करते हैं. मान लीजिए हमने पहले यूज किया रेड लाइट, उसके बाद हमने यूज की ग्रीन लाइट, फिर हमने यूज ब्लू लाइट. या हमने पहले रेड लाइट यूज की, वी विल यूज द बल्ब ऑफ रेड लाइट ऑफ 100 वाट, देन वी विल यूज द बल्ब ऑफ ब्लू लाइट एंड देन वी विल यूज द बल्ब ऑफ ग्रीन लाइट. तीन तरह का यूज करेंगे. इसका मतलब जब हम रेड का यूज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी उसका कुछ और होगा, अगर हम ब्लू का करेंगे तो कुछ और फ्रीक्वेंसी होगा, अगर हम ग्रीन का करेंगे तो उसका कुछ और फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे एक चीज हम कांस्टेंट रख रहे हैं, क्या चीज कांस्टेंट रख रहे हैं? इंटेंसिटी. हम लोग सेम वाट का बल्ब यूज कर रहे हैं, 100 वाट का. हमने 100 वाट का बल्ब लिया और यहाँ पे इसको थ्रो कर दिया. जब हमने यहाँ पे इस लाइट को थ्रो किया तो व्हाट विल वी फाइंड? इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आए, इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउटसाइड and we have the current, we will know blue light and the green light, current will be there. If you use this, see the case here also again with the potential, it is the positive potential, plus 1 volt, plus 2 volt, plus 3 volt and plus 4 volt, and it is minus 1, minus 2, minus and what is side is the photoelectric current. Now what will we use? Intensity is same. हमने क्या फाइंड आउट किया? ऑलरेडी there is some current toward this side, this voltage, and this is the suppose this is the voltage we have applied, and here is your which one your case now. In case of frequency we will use the voltage as well as we will use the photoelectric current. here हमने frequency मान लीजिए nu1 यूज की, nu1 जब यूज की तो हमने क्या फाइंड, सेम ग्राफ इस तरह का ही बना ऐसे. इंटेंसिटी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट. इंटेंसिटी क्या है? कांस्टेंट. इस तरह का ग्राफ बना. ओके, ये करंट बढ़ा बढ़ा और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सैचुरेशन आ गई. वोल्टेज बढ़ाएंगे, सैचुरेशन आगे तक चला जाएगा, ऐसे सैचुरेशन आ जाएगी, कांस्टेंट करंट रहेगा. अब हमने क्या केस को जीरो करने को नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया. नेगेटिव वहां से अप्लाई होगा, हमने नेगेटिव किया अप्लाई, तो ये यहाँ पर आकर के यहाँ पे जीरो, दिस इज B01, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ दिस. अब हमने क्या किया कि हमने फ्रीक्वेंसी न्यू2 यूज की. क्या यूज की हमने? न्यू2 फ्रीक्वेंसी यूज की. तो न्यू2 जब हमने फ्रीक्वेंसी यूज की, बट विल फाइंड कि जो करंट था वो तो सेम ही रहा, करंट सेम ही रहे. अब आप बोलेंगे सर करंट क्यों सेम रहे? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी चेंज किया हमने, इंटेंसिटी तो सेम रखी, तो करंट तो रहेगा, सेम रहेगा. यहीं से स्टार्ट होगा. जब यहीं से स्टार्ट होगा वी विल फाइंड अगेन कि थोड़ा सा करंट ऐसे बढ़ा और यहाँ से ऐसे निकला है. ओके, दिस इज द केस कि सी दैट दिस इज द केस हियर. और व्हाट विल वी फाइंड हियर कि स्मॉल करंट यहाँ से ऐसे आया, हमने देखा कि ये यहाँ पे आकर ऊपर 0 ऐसे हमने nu3 यूज किया. nu3 यूज करके वी विल फाइंड हियर nu3. तो वी बट वी कैन से दिस nu1 is nu3 is greater than nu2 is greater than nu1. Means if we increase the frequency, more is the stopping potential. अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा. अब रीजन इसके पीछे भाई, सपोज करिए
हमने क्या किया है, यहाँ से 100 वाट का बल्ब यूज किया तो 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ को जा रहे हैं। अब क्या होगा कि हमने रेड लाइट यूज की, फ्रीक्वेंसी उसकी क्या कर दी, चेंज कर दी। जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम केस यहाँ पे कि उनको स्टॉप करने के लिए उस केस में हमें ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा है। जितनी आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ा रहे हैं उतना ही ज्यादा हमें पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके डायरेक्टली पोजीशन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के। means what we can say stopping potential जो होगा that is directly proportional to frequency. More is the frequency, more is the stopping potential. More is the frequency, more is the stopping potential. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मैं एक बात आपको बताता हूं, मान लीजिए हमने पढ़ा हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर या इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट। सी बी से बी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। मैं बोल रहा हूं काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू बी नॉट और बी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, देन द काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू सी। अगर ये इसके प्रोपोर्शनल है तो ये भी इसके प्रोपोर्शनल है, अगर ये इसके प्रोपोर्शनल है तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, इसके प्रोपोर्शनल है। इट व्हाट डज मीन कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द रेशियो। मोर इज द फ्रीक्वेंसी, more is the kinetic energy. Lesser is the frequency, lesser is the kinetic energy acquired by the electrons. Lesser is the kinetic energy acquired by the electron. More is the frequency. What is the relation between the frequency and the kinetic energy? Kinetic energy is directly proportional to frequency. More is the frequency, more is the kinetic energy. Now, in this case, one thing will be happen. Suppose I have red light, blue light, and green light. Their minimum frequency होनी चाहिए जिसके ऊपर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस होगा। मान लीजिए हमने क्या किया कि यहाँ से एक हमने रेड लाइट यूज की, 100 वाट का बल्ब है, सेम इंटेंसिटी का है, हमने यहाँ से फेंकी इसके ऊपर लाइट। ना रेड लाइट ने क्या किया, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाला, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाला, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। लेकिन हमने ब्लू लाइट की उसने निकाल दी, इसका मतलब रेड लाइट को हमने और बढ़ाई, उसकी इंटेंसिटी और बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ाते गए रेड लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब हमने ब्लू लाइट यूज की तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। इसमें रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी नहीं है कि उससे कोई इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल सके, तो हमने किसको यूज किया, ब्लू को। तो ब्लू के पास वो है, तो एक मिनिमम वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की जिसके ऊपर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस होता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो किनारे पे वैल्यू होगी, जो जिसके नीचे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, दिस कॉल्ड न्यू नॉट। व्हाट इज कॉल्ड न्यू नॉट। न्यू नॉट के ऊपर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पर मूव नहीं करेंगे। न्यू नॉट के ऊपर इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे पर मूव नहीं करेंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, उनके पास वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी होगी, समझ लो कि नहीं। न्यू नॉट के ऊपर इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे लेकिन वो मूव नहीं करेंगे। लेकिन जब हम न्यू नॉट से कम होगी तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन, न्यू नॉट से जैसे फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, देन द फोटोइलेक्ट्रिक emission will take place. What this frequency called threshold frequency? What is the threshold frequency? Threshold frequency is the minimum value of frequency above which the photoelectric effect can take place and below which the photoelectric effect cannot take place. This is the certain minimum value of frequency above which the photoelectric effect can take place and below which the photoelectric effect can't take place. That is called the threshold frequency. You can write threshold frequency. Threshold frequency is the minimum value of frequency of any light below which photoelectric effect will not take place and above which the photoelectric effect will take place. Electron will release in case of threshold frequency also, but they can't move. There is no photoelectric current. It means if the electrons will release, then it is equal to this frequency is equal to the work function of the matter. Yes or no? This is equal to the work function of the matter or work function of the matter. You can write phi is equal to h into mu naught. We can write it as phi because h into mu naught, that is called energy. The work function is equal to h into mu naught. H into mu naught. This is the expression for work function of the matter. Work function of the matter. Different metal have the different work function. If you know Planck's constant 6.6 into 10 power minus 34 joule per second, and you know, if you know, you can find out. This type of numericals came in an examination. Okay, so this is the case that we have the experimental study of photoelectric current. Now, if we suppose if we make the graph between frequency and frequency and stopping potential, see the case. I will make the graph with stopping potential वोल्ट में और इस तरफ को फ्रीक्वेंसी ली होगी। तो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ से जाकर के आपकी फ्रीक्वेंसी जब यहाँ होगी तब आपका फोटोइलेक्ट्रिक, यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी तब होगी। तो बताइए पी मेटल है, क्यू मेटल है, क्या बता रही है? What this frequency called? This is called mu naught. What is called? This is mu 02, this is mu 01. In which case the threshold frequency? In this case the threshold frequency is more. In this case the threshold frequency is less. In which matter have the more work function? P और Q? P का वर्क फंक्शन कम है, Q का ज्यादा है। तो ये प्लैटिनम में होता है और ये Cg में होता है। क्यों? इस ग्राफ बता रही है क्योंकि इसका स्टॉपिंग, सी इन दिस केस हियर द दिस फ्रीक्वेंसी दैट इज which one? Less, threshold frequency less.
जब CGM उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेस होगा, प्लेटिनम का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, तो इसका ज्यादा होगा, तो वी कैन से दिस इज प्लेटिनम, दिस इज CGM. You can say which metal have more work function. Few metal have more work function than that of metal Q. Now we will discuss the laws of photoelectric emission. We will discuss the law of photoelectric emission now. We have laws of photoelectric emission. Number first law, for a given substance there is a minimum frequency of incident light called threshold frequency below which no photoelectric emission take place whatsoever the intensity of incident light may be. Means जो आपकी फ्रीक्वेंसी है that should be greater than that of the threshold frequency. अगर threshold frequency कम होगी तो आपका photoelectric emission take place नहीं होगा. First. Second law, the number of photoelectrons emitted per second by the substance is directly proportional to intensity of the incident provided nu is greater than nu naught. जो आपके number of photoelectrons कितने निकलेंगे वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं केवल. neither depend on frequency, they depend on the intensity. 100 वाट का बल्ब तो 100 इलेक्ट्रॉन्स, 50 वाट का बल्ब तो 50 इलेक्ट्रॉन. में हाउस वाइवर में भी ज़्यादा भी उसके कम भी उसके, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ. तो इस तरह से frequency should be greater than that of nu naught. Nu naught means threshold frequency ज़्यादा होनी चाहिए. Third law, that is the maximum kinetic energy increases with increase in frequency of the incident light. The kinetic energy, maximum kinetic energy increases with increase in frequency. More is the frequency, more is the kinetic energy. We can say kinetic energy maximum, that is directly proportional to nu, but we can say nu should be greater than nu naught. The process of photoelectric emission is instantaneous. जैसे ही मेटल सरफेस के ऊपर कौन पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा. See the case. How it will happen? It means light consists of photons. Photons means particles. Light particles है, पार्टिकल इसके ऊपर पड़ेगा, पार्टिकल एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन बाहर, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन बाहर, और फोटोन एक इलेक्ट्रॉन बाहर. Is it? Now this has कोई एक it has a bullet like nature. एक बुलेट पड़ी दूसरी बाहर निकल गई. सीधे से बुलेट ऊपर पड़ी, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया. इस तरह से एकदम से बाहर निकलेंगे. जैसे ही आपका फोटोन पड़ेगा इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा. तो दिस इज इंस्टेंट. इस द टाइम इज वेरी स्मॉल, दैट इज 10⁻⁹ सेकंड. इतने टाइम में इलेक्ट्रॉन क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है. तो ये लॉज हैं इसके फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के, एग्जाम में आते हैं. उसके बाद फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट इन केस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेव थ्योरी फेल हो जाती है. पार्टिकल नेचर से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन होता है. अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन हो जाता वेव नेचर से, तब तो वेव नेचर सिंगल नेचर का, डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट नहीं होता. लेकिन जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ओनली किससे एक्सप्लेन होता है, पार्टिकल नेचर से. उसको मैं कुछ करूं, मान लो हम वेव नेचर की बात करते हैं. वेव नेचर की बात, तो एज पर हाइसन, हाइसन ने बोला कि लाइट जो है उसके पास वेव फ्रंट्स होते हैं. वेव फ्रंट्स होते हैं, क्या होते हैं, वेव फ्रंट्स. तो वेव फ्रंट जब होंगे, एनर्जी बाय द लाइट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इट्स एम्पलीट्यूड. सी एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल नहीं होगी. मींस लाइट की जो एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, नॉट बाय द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड आप कम कर दो, ज्यादा कर दो, एनर्जी नहीं बढ़ेगी. एनर्जी किससे बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी से बढ़ेगी. अगर हम बात करें, लेकिन जो हमारी लाइट है, वेव थ्योरी क्या बोलती है, वेव थ्योरी ये बोलती है कि अगर उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो उसके एफ इज इक्वल टू क्यू इनटू ई. सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, क्योंकि ये वेव क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल मैग्नेटिक. इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक वेक्टर का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा लगेगी. फोर्स ज्यादा लगेगी तो व्हाट विल हैपन कि जो आपकी दैट इज एनर्जी वो ज्यादा होगी. ये तो वेव थ्योरी बोलती है. लेकिन एज पर योर पार्टिकल नेचर ऐसा कुछ नहीं है. वेव थ्योरी तो बोल रही है एनर्जी ज्यादा होगी इंटेंसिटी से, लेकिन हम तो यहाँ एक्सपेरिमेंटल से प्रूव कर रहे हैं कि एनर्जी ज्यादा होगी किससे, फ्रीक्वेंसी से. इज इट? तो वेव थ्योरी फेल हो रही है, क्योंकि वेव थ्योरी क्या बोलती है कि एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगी. फोर्स ज्यादा होगी तो उसके जो आपके पास एनर्जी है वो ज्यादा होगी. वो तो बोल रही है वेव थ्योरी. लेकिन आपकी पार्टिकल नेचर से क्या बोल रहे हैं हम लोग, पार्टिकल नेचर से बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तब क्या होगा. तो कौन सा सही है, एक्सपेरिमेंटल के ऊपर प्रूव करना है आप लोगों ने कि वेव के नेचर के ऊपर. मतलब वेव नेचर डू नॉट एक्सप्लेन द means energy does not depend upon the amplitude. Second case with the wave front, many electrons comes out together. See, we have a wave front, suppose we have a wave front and these are the electron in the metal surface. वेव फ्रंट क्या बोलता है, वेव फ्रंट आया, थोड़ी थोड़ी एनर्जी सबने बांट ली वेव फ्रंट से, सबने थोड़ी थोड़ी बांट ली. फिर दूसरा वेव फ्रंट आया, फिर थोड़ी थोड़ी एनर्जी फिर ली, फिर तीसरा आया फिर ली, फिर चौथा आया फिर ली, पांचवा आया फिर सबने सफिशिएंट एनर्जी एक्वायर की और सभी एकदम से बाहर निकल गए. क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. वेव थ्योरी के कारण तो क्या बोलता है, सभी इलेक्ट्रॉन एकदम से बाहर आएंगे. एकदम से बाहर आने का मतलब सभी पहले एनर्जी एक्वायर करेंगे फिर बाहर आएंगे. थोड़ी सी एक लेगा, थोड़ी सी दूसरी लेगा, थोड़ी सी तीसरी लेगा, सभी थोड़ी थोड़ी बांटेंगे उस एनर्जी को वेव फ्रंट से. तो इस तरह से इसका मतलब वेव थ्योरी यहाँ भी फेल हो रही है. कोई वेव फ्रंट यहाँ पे पार्टिकल नेचर का कंसेप्ट है. पार्टिकल नेचर का क्या कंसेप्ट है, जैसे ही हमारा फोटोन पड़ता है वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है. एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि ये फोटोन की एनर्जी सबको डिवाइड होगी. एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, बुलेट नेचर होगा. 10⁻⁹ सेकंड का टाइम लैग होगा. मीन देयर इज नो टाइम लैग. सी द केस,
there should be time lag between the radiation and injection of electron due to energy given by the wavefront. What? There is no time lag. Means अगर हम क्या करेंगे, एक वेव फ्रंट आएगा, थोड़ी सी एनर्जी गेन करेंगे, सभी थोड़ी थोड़ी करेंगे, बांटेंगे आपस में, दूसरा आएगा, फिर बांटेंगे, तीसरा आएगा, तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर तो कोई टाइम लैग होता ही नहीं। As the photon falls on the metal surface, electron comes outside the metal surface. But we can say there is no time lag. What this theory says, there is a time lag. There is a time lag. Means क्योंकि यहाँ से वेव फ्रंट आया, उसने थोड़ी सी एनर्जी एक्वायर की, फिर वेव फ्रंट आया, फिर एनर्जी एक्वायर की, फिर वेव फ्रंट आया, फिर एनर्जी सबने एक्वायर की, सभी इकट्ठे बाहर निकले, देयर इज अ टाइम लैग। लेकिन हमारा जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडी, उसमें देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द falling of the light and the coming of ejection of the electrons. But we can say wave theory does not give the photoelectric effect. Means light का जो wave nature है वो photoelectric effect नहीं देता। इस चीज को हम यहाँ से प्रूव कर चुके हैं। इस चीज को क्या कर चुके हैं हम लोग, प्रूव कर चुके। अब कहीं को डाउट है फिर वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट मीन्स वेव फ्रंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने पानी में पत्थर फेंका, तो क्या होता है कि डिस्टर्बेंस ऐसे जाते हैं, सभी पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं, सभी पार्टिकल नीचे चले जाते हैं, जो ऊपर वैसे बनता है उसका हम वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। Locus of all the particle of the medium vibrating in same phase is called a wave front. You have discussed the wave front in the Heisenberg theory in the previous topic. If you have any doubt, then I will also give this topic to you. Or thanks, have a nice day. You can like and subscribe my channel SK Classes for Physics. You will find that there is some interesting topics. So we will discuss these. Tomorrow we will discuss another topic. Thanks, have a nice day.